In the heart of Bihar, where dairy farming is more than just a livelihood, the introduction of decentralized renewable energy technologies is creating a quiet but powerful revolution. The project contributes to Government of India's vision of solarization of the agriculture sector and contributes to improved livelihood of farmers. The project actually works in the intersection of renewable energy and agriculture. We are primarily working in three value chains, and these value chains are dairy, fishery, and agriculture. We are looking at decentralized renewable energy technologies in the area of irrigation, processing, value addition, and cooling. Decentralized renewable energy solutions are empowering rural Bihar's small and marginal dairy farmers, particularly women, providing them with sustainable, productive tools that reduce dependency on erratic power supplies. Solar water pumps, solar milking machines, solar refrigerators, etc. help not only in overcoming power issues, but also in empowering the community towards financial independence and sustainability. The dairy farmers are also provided training on these solar-powered technologies. Village-to-village awareness programs were conducted to sensitize and encourage farmers to use such reliable energy solutions. The milk procurement, transport and processing are quite organized in dairy sector due to its perishable nature. However, the sector faces certain challenges such as unreliable storage, insufficient chilling infrastructure, high diesel cost of running milk chillers, etc. that results in milk spoilage in significant quantities. Dairy farmers also faced the daunting task of manually milking multiple cows, which was time-consuming and physically exhausting. The solar-powered milking machine has revolutionized the lives of women farmers, giving them more time, reducing physical strain, and allowing them to explore other economic activities. सुबह मेरा मिल्किंग होता है सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, शाम में 5 बजे के बाद। तो उस समय धूप तो रहता नहीं है, डायरेक्ट सोलर से चल नहीं सकता है, इसीलिए उसमें बैटरी दिया हुआ है, तो हम बैटरी का यूज़ कर लेते हैं। लाइट है अभी नहीं है, उससे मतलब नहीं है। हम जो बिजली बिल पहले जमा करते थे, अब उसमें थोड़ा कमी आ गया है। अब इससे जो बचत होता है, हम इसको डेयरी को अपने विकास में के कार्य में और लगाते हैं। पहले थनेला रोग ज़्यादा होता था, थन फूल जाती थी और हाथ से धोने से उसको दिक्कत होती थी। अब वो चीज़ अभी नहीं हो रही है। सर्विसिंग का इससे हमें सपोर्ट पूरा मिलता है। अगर बीच में अगर कोई भी मतलब मशीन ख़राब हो जाता है या कोई दिक्कत आती है, तो हम सिर्फ एक बार कॉल करते हैं, समय पे आते हैं और ये ठीक करके जाते हैं। Solar milking machines bring more than convenience. They reduce physical labor, lower costs, and give these farmers the freedom to increase productivity and income without relying on diesel. For farmers like Varun Kumar, storing milk was a daily struggle due to unreliable cooling options. With the solar refrigerator, he can now keep his milk fresh longer, ensuring he can sell high-quality products at better rates. जब से ये लिए तो बिजली बिल थोड़ा कम लगता है। बिजली बिल से जो पैसा बचता है हमको, दुकान को आगे बढ़ाते हैं, मास्टर को फीस भी देते हैं, बच्चा को कॉपी कलम होता है, इसी में से हम लोग निकाल कर देते हैं 10-20 रुपया। कभी हमको भी ज़रूरत पड़ता है 10-20 ले लेते हैं इसमें से। कभी कोई चीज़ रख देते हैं इसमें, तो बिजली रहता तो नहीं रहता, कोई टेंशन ही नहीं हमको बिजली से। अथी बैटरी के पर चलवे करता है 24 घंटा अथी सूर्य प्लेट पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। इससे हमारा जानवर को पानी पीने का साधन उतना नहीं हो पाता था। साथ साथ इसके लिए हम जय बाजरी जो लगाते हैं चारा के लिए, वो समय पर नहीं पानी मिलने के कारण मर जाता था, तो हमारा पशु को बहुत दिक्कत होता था। खान पान में सही ढंग से नहीं मिल पाता था। गांव क्षेत्र में बहुत कम लाइन आता था। हम जानवर को भी धो लेते हैं, समय पर पानी भी दे रहे हैं, और इसमें हमारा बिजली बिल तो नहीं लगता है। उसमें बिजली बिल भी जाता था और लाइन भी नहीं रहता था। गांव के कुछ लोग देखने आते हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं और उन लोग को बताते हैं कि यह हर जगह लगवाइए, बहुत अच्छा और लाभ मिलेगा सबको। ये सोलर लेने का यही कारण है, क्या दूध का बर्तन जो रहता था लाइन नहीं है तो हमको दिक्कत होता था धोने में। अब जो इसको ले लिए हैं तो लाइन रहे या ना रहे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपना बर्तन समय पर धो लेते हैं, अपना समिति चला लेते हैं।
लाइन पर हम सथी मोटर चलेबे नहीं करते हैं, हमेशा हम सोलर पर ही करते हैं। अगर धूप का अथी होने वाला रहता है पहले हम टंकी भर लेते हैं। अपने काम में वही बाड़ी है तो उसको मतलब यूज करते हैं, पटाते हैं, थोड़ा मतलब सब्जी उब्जी कर लेते हैं। और कहीं अगल बगल में मतलब लाइन नहीं है, नहीं आया तो ज़रूरत पड़ता है तो भी मदद करते देते हैं। घर में भी मतलब मान लीजिए कि रिचार्ज में जो पैसा देते थे वो मेरा बच जाता है, तो घर में भी कुछ भी बच्चा का पढ़ाई हो, बच्चा का ट्यूशन फीस हो तो मतलब इधर देते हैं। इसमें एक और खासियत है, सिम लगा हुआ है और मोबाइल से ऑपरेट होता है। अगर हम चारा लाने के लिए बाज़ार चले गए और हम ऑन रह गया तो हम वहीं से हम उसको बंद कर लेंगे। These solar water pumps have brought a steady water supply at lower costs and increased crop productivity to farmers, reinforcing the impact of DRE technologies on their livelihoods. केंद्र सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, PMEGP और PMFME। PMFME योजना के तहत पोस्ट प्रोसेसिंग का जहाँ तक बात करते हैं हम लोग, वो कवर्ड होता है प्रोसेसिंग के लिए। तो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका प्रोसेसिंग का कार्य कर सकते हैं इस योजना का लाभ लेकर। इसमें 35% की सब्सिडी मौजूद है, बैंकों के द्वारा ये सब्सिडी प्रदान की जाती है। दूसरा PMEGP की बात करें हम तो डेयरी को सेटअप करने के लिए केंद्र सरकार की ये योजना है, जिसमें 12 लाख तक का एक प्रोजेक्ट बना करके बैंकों के माध्यम से इसको फाइनेंस भी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम माइक्रो फाइनेंस करते हैं, जिसमें हम महिलाओं का ग्रुप बना करके उनको लोन देते हैं इनकम जनरेशन पर्पस के लिए। इसके अलावा हम कई और नए क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी। आज जो संख्या 6 की है वो संख्या आगे जाके इस फाइनेंशियल ईयर में ही तकरीबन 100 के आसपास हम लोग कर पाएंगे। 30 FPO जुड़े हुए हैं हमारे साथ और लगभग 35,000 किसान हैं जुड़े हुए। तो हमारा एक्सपेक्ट उस फार्मर से भी है और उनके लिए भी हम ये चाहेंगे कि वो लोग इस तरह का सोलर बेस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, जिससे उनको तो फायदा होगा ही, साथ साथ हमारे जो FPO वाले हैं उनको भी फायदा होगा। We have to make all this technology very aspirational, very affordable, very clean, so that future generations will take up and continue to pursue these businesses. At the same time, this will also increase productivity and also make it more sustainable in terms of business model, so that more marginal farmers and women can come out of poverty using this technology and from this value chain. As we look ahead, the integration of DRE technologies in rural India offers a vision of sustainable, self-sufficient communities. By supporting and expanding these initiatives, we can create a brighter, more resilient future for all.